Nigde sir, Sir. Nigde sir, shall Ah, we start? yes, yes, yes. Please. Okay. Okay. Hello and good morning to all the participants and today's speaker. I, Professor AJ More, welcome you all on behalf of All India Sri Shivaji Memorial Society's Institute of Information Technology Pune crash course of TCET 2020. To start the session, I request Professor A.N. Khan Madam give the introduction of our today's guest, Mr. Asim Patan sir. Madam, over to you. Thank you, sir. Um, Now I am introducing our today's chief guest for the third day session. First, Asim Pathan sir. His designation is PGT Mathematics, a faculty at Vidyam and Deep Academy, Pune. He is ex-faculty of mathematics in Siagal Institute's lifetime member of Indian Mathematical Society. He has been qualified in MSc Mathematics and he has also done B.Ed from Department of Mathematics SPPU. His experience is he has a professional experience of more than 10 years in teaching, and he has been teaching to 11th and 12th, both CBSE and HSC board students. JEE means MST, CET, NATA, and Olympiad examination at national level. He's been teaching with. His achievements are that he has got 1100 rank in JAM exam. He has been appreciated for best results for engineering students. He has more than 1,000 students admitted to reputed engineering and architecture colleges in Maharashtra. With this brief introduction, I would welcome Asim Pathan sir for as a guest speaker for our session conducted today. Welcome, sir, and I hand over you the to head the session. Thank you, sir. Yes. Thank you, ma'am. Thank you for a very nice introduction. So, first of all, welcome, students. I would like here to thank everyone of this AISSMS team who have invited me as a speaker for today's session. First of all, I would like to thank here Mr. Vallabh Shinde sir, then DD Pise sir, coordinator, then Professor MB Nigde sir, coordinator of the session, Dr. PG Mushrif sir, HOD, and Dr. PB Mane sir, principal of AISSMS Institute. So I thank you everyone as well as the management for giving me a chance to present in front of you. This is very nice initiative taken by the organization. Now let us start with our today's session. So welcome, students. Here I'm going to share some tips and tricks to get your dream engineering college in 2020. Now the most important thing and the practical thing I would like to share here with you all is your results of HSC examination are expected to come on 15th of June, near about 15th of July. So after that, your this examination might be conducted. So the most important thing here about this examination is that from past 2 years, from 2019, they have started a new part in this. They have started a new implementation, and there's some change in the syllabus and the structure of the examination.
The examination will be conducted on computer-based test, so it will be a CBT. Then there will be syllabus of 11th standard also included into that, as well as 12th standard. There will be complete syllabus of 12th standard. I hope you know the syllabus, and some part of 11th standard. Now, for most of us, they have mentioned in the brochure as well as everywhere that the examination will be of JEE level. So, actually, what this means exactly that the questions will be quite tough than the previous one. This doesn't mean that the questions are will be made such that the students will not be able to solve it. The students will be able to solve the questions. Only the important thing here is there will be some questions. Those questions will take some time to get solved. The complete paper of mathematics that will be in part 2. There are two parts of examination. So part 1 will be for physics and chemistry, and part 2 will be for mathematics. So part 1 will be of 90 minutes and part 2 will be of 90 minutes. As soon as first 90 minutes get over, your first paper will be automatically submitted and the second paper will start on your computer screen. So the first paper will be disabled and the second paper will be enabled in front of you. Now here, after getting the second paper started of mathematics, so today I'm here to discuss about that paper only, second paper, and which is very important and a crucial part here, because it is going to give you 100 marks out of 200. Means the total paper will be of 200 marks, out of which 50 marks will be physics, 50 marks will be chemistry, and 100 marks will be maths. So this 100 marks, which is of 50% of weightage, will be discussed today. And if you score very well in this mathematics, you will be able to get your dream engineering college. Now, what does exactly dream engineering college means? First of all, it is dealing with most important thing. There are different aspects. Okay. And after this, different there are different aspects of student grooming, and the college which grooms student well in every aspect and make them eligible for the society outward is a dream engineering college. You must have heard about this dream engineering colleges from your some seniors that ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज बहुत अच्छा प्लेसमेंट देता है, किसका 5 लाख का प्लेसमेंट है, किसका 10 lakhs, किसका 6 lakhs, किसका 12, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो 15 lakhs का प्लेसमेंट है, 20 lakhs का प्लेसमेंट है. तो दिस एवरीथिंग दिस डिपेंड्स ऑन college as well as you. These are two important things. Now, to get your dream engineering college, you should get good marks in CET examination. So for that, I'm here with you today. So let us start. This is the second slide here. So here you can see the question paper pattern is there. I have already discussed about this. Now the most important thing I'll be discussing about 11th standard syllabus. The 11th standard syllabus includes trigonometric functions. This is one chapter. Then trigonometric functions of compound angles के बारे में डिस्कस करता है वो. Factorization formulae, straight lines, circle and conics, sets, relation and function, probability, sequence and series. तो हम लोग 11th स्टैंडर्ड का भी देखेंगे और 12th स्टैंडर्ड का भी. जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना हम लोग ट्राई करेंगे. ओके, सो वी विल ट्राई फॉर दैट. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, क्वेश्चंस, किसी को भी कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, डाउट्स है, तो आप लोग चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं. डोंट हेजिटेट टू आस्क योर डाउट्स. फाइन. So let us start with 11th standard syllabus. So expected weightage दिया है मैंने यहाँ पे, आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये जो चैप्टर है इसके लिए 2% वेटेज है 11th स्टैंडर्ड का. मतलब एक क्वेश्चन जो कि 2 मार्क के लिए होगा वो आएगा 11th स्टैंडर्ड से. तो इसका लेवल थोड़ा सा इजी होगा एज कम्पेयर टू जो 12th स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं उससे. तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे इजीली टैकल कर सकते हो, इजीली आप लोग इसका आंसर दे सकते हो. देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल. तो इसका एक्सपेक्टेड वेटेज है 2%. मतलब एक क्वेश्चन आएगा कंपाउंड एंगल के ऊपर और आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली. फैक्टराइजेशन फॉर्मूले है उसके साथ में, फिर स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कोनिक्स, सेट, relation and functions, sequence and series, and probability.
सो इसका सबका वेटेज दिया है यहाँ पे 2% किसका वेटेज है, 2% स्ट्रेट लाइन का वेटेज है, सर्कल एंड कोनिक्स का भी 2% वेटेज है। देन सेट रिलेशन एंड फंक्शन, इसका 4% वेटेज है। 4% वेटेज का मतलब होगा 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, एक होगा सेट से रिलेटेड और दूसरा होगा फंक्शन से रिलेटेड, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा वाइड रेंज कवर करता है, तो इसीलिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। देन सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हाँ, हार्मोनिक है, फिर बाद में सीरीज वाला पार्ट कवर करता है। ये तो सब इसके लिए इसके ऊपर आएगा, 2 क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर। सो इसका टोटल जो होगा, जो कि 11th स्टैंडर्ड से कवर होगा, वो होगा 20 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स, मतलब अराउंड 20% जो सिलेबस है आपका, वो 20% जो पेपर है वो 11th स्टैंडर्ड के ऊपर होगा। देन उसके बाद आता है पार्ट 1 12th स्टैंडर्ड का। तो यहाँ पे पार्ट 1 में से कुछ चैप्टर्स है, जैसे मैथमेटिकल लॉजिक, 4% का वेटेज है। तो ये इजी चैप्टर है, 4% का वेटेज इसलिए दिया है क्योंकि स्टूडेंट इसे सॉल्व कर सके एंड दे कैन अर्न देयर मार्क्स। आपको यहाँ पे मार्क्स अर्न करने हैं। देन मैट्रिसेस 4% का है, फिर वहाँ पे 2 क्वेश्चंस आएंगे मैट्रिसेस के ऊपर। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब ये 12th स्टैंडर्ड का है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका मतलब 11th स्टैंडर्ड के ऊपर से एक क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाँ, और यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। तो टोटल 3 क्वेश्चंस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर देख सकते हैं। तो आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा 11th स्टैंडर्ड की लेवल का है और कौन सा 12th स्टैंडर्ड की लेवल का है क्वेश्चन पेपर के अंदर। मैं तो अभी बताऊंगा आपको कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन होगा, लाइन के ऊपर भी 2 क्वेश्चंस होंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है। फर्स्ट पार्ट का सर्कल के ऊपर 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। कोनिक सेक्शन, जिसके अंदर पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स आता है, उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस होंगे। बाद में आता है वेक्टर्स, वेक्टर्स है 6%, 6% मतलब 6 मार्क्स के लिए आएगा, हाँ, और इसका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा 3 क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज है वेक्टर्स के अंदर और ये आगे जाके भी बहुत सारे यूजफुल है वेक्टर्स भी। तो आपको यहाँ पे ज्यादा 3 क्वेश्चंस दिखेंगे यहाँ पे। देन देयर कम्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री लिखा है मैंने वहाँ पे। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसके ऊपर 4 मार्क्स आता है, तो 2 क्वेश्चंस आएंगे इसके। फिर आएगा लाइन, लाइन के होंगे 2 क्वेश्चंस, प्लेन, प्लेन के होंगे 2 क्वेश्चन, एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इजी वाला, सबसे इजी जो पार्ट है। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन एकदम इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ये था पार्ट 1 के लिए, जो कि 40 मार्क्स कवर करेगा आपका। देन कम्स पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी के अंदर 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। थोड़ा एक होगा लिमिट के साइड वाला और दूसरा होगा सिर्फ कंटिन्यूटी बेस्ड। फिर आएगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के ऊपर 3 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 6 मार्क्स के लिए होगा डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, सो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, दो क्वेश्चंस होंगे जो कि 4 मार्क के लिए, मैक्सिमा मिनिमा वाला पार्ट जो है उसका। देन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे होगा 6 मार्क्स के लिए, हाँ। सो यहाँ पे जो मैंने परसेंटेज दिया है वो आउट ऑफ 100 है मार्क्स, बेस्ड ऑन मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 3। एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, सो एप्लीकेशन पार्ट में ये 2 चीजें आती है, एक आता है डेफिनेट इंटीग्रल्स और दूसरा आता है एरिया वाला पार्ट। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आएंगे, कुछ एरिया में एक क्वेश्चन आएगा और दूसरा क्वेश्चन होगा जो कि डेफिनेट इंटीग्रल का होगा, जहाँ पे लिमिट दी है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दिया है, जो कि आपको सॉल्व करना है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के साथ। फिर उसके बाद होगा स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो कौस्तुभ Korpe has raised his hand. So please, you can share your question in the chat box. Okay, Kaustubh. Just a minute. Let me take his question. Just I'll take question. Answers will be given at the end. Raise question at the end. Okay, fine. So I have given you this chat box. You can raise your question at the end, and in chat box you can raise your question. So further, applications of definite integrals. There will be 2 questions. One will be based on upper limit and lower limit, and the second one will be also on upper limit and lower limit. लेकिन वहाँ पे एरिया फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर होंगे 2 क्वेश्चंस।
एक होगा ऑर्डर एंड डिग्री पे बेस्ड होगा, थोड़ा सा इजी, एंड दूसरा होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट, ये स्टैटिस्टिक्स। ये तो सबको अच्छा लगता होगा स्टैटिस्टिक्स। 2 क्वेश्चंस आएंगे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो फिक्स एक क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आ सकता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा पार्ट है जो कि आप थोड़ा नया सीख रहे हो यहाँ पे। एंड जो भी मतलब ये जो एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये आपको सिर्फ एक स्टेप आगे रहने के लिए बोलेगी कि यू शुड बी जस्ट वन स्टेप अहेड ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों से सिर्फ एक स्टेप आपको अहेड रहना है। अगर आप एक कदम आगे है तो आप निकल जाओगे। देन कम्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो जहाँ पे 2 क्वेश्चंस आएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, एंड देन बर्नौली ट्रेल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके ऊपर भी 2 क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो कि दिया है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक आएगा अपना मैथमेटिकल लॉजिक। एकदम इजी टॉपिक है, सबको अच्छा लगता है ये। यहाँ से 2 क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। सो एक क्वेश्चन पहले लेते हैं हम लोग। द क्वेश्चन स्टार्ट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज नेगेशन। आपको नेगेशन निकालना है। एक स्टेटमेंट दिया है नेगेशन ऑफ, देन नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड क्यू इज इक्वल टू। तो आपको इसका नेगेशन ढूंढना है इस स्टेटमेंट का। व्हाट विल बी द नेगेशन? आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको तुरंत पता चलेगा कि ये जो नेगेशन वाला साइन है वो कहाँ पे जाएगा फिर आगे। सो लेट अस गो फर्दर। से इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ पे डिस्प्ले होगा है आपके लिए। सो नेगेशन ऑफ, तो ये नेगेशन ब्रैकेट के अंदर जाएगा, दैट विल बी नेगेशन ऑफ नेगेशन पी और क्यू। मतलब यहाँ पे एंड है, अंदर जाने के बाद ये होगा और नेगेशन क्यू। तो अब यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन इज पी और नेगेशन क्यू। सो पी और नेगेशन क्यू, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? देन ऑप्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन। यहाँ पे समझ में आ रहा है सबको? आई होप यू आर गेटिंग इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन रेज इट इन द chat section. Okay, don't hesitate to raise your questions in the chat section. Then after this you have classification, simplification of this statement. The statement is negation p and q or negation q is। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, इसको सिंप्लीफाई करना है इस स्टेटमेंट को। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं? जैसे कि बहुत सारे रूल्स है, प्रॉपर्टीज है, वो सब प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे यूज करनी है। विच आर दोज प्रॉपर्टीज? जैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसका यूज करना है आपको यहाँ पे। एंड नेक्स्ट थिंग इज जो कि एंड और के लिए रूल्स है वो आपको यूज करने हैं। सो लेट अस गेट फर्दर। सो पहले negation of p and q or negation q is equivalent to negation q or negation p and q। यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की है। विच प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड हियर? वी हैव यूज्ड हियर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो yeah, we have used here commutative property. Next is this. After using this commutative property, next what are we going to do? Negation of q or negation or q and negation p. So this time again we have used here commutative property. यहाँ पे हमने एक बार फिर से commutative property use की है यहाँ पे। After using this commutative property, next part negation q or q and negation q or negation p. Then we have used distributive property. तो यहाँ पे distributive property use की है हमने। दिस इज इक्विवेलेंट टू negation q और q। negation q और q क्या होगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे negation दोनों साइड में है, q के भी है और p के भी है। तो negation को बाहर लेके ये जो है और का एंड कर देंगे हम लोग। तो negation of q and p. What is negation of q and p? By using again commutative property for and, we get negation of p and q. So I hope you got this answer. कहाँ पे इसका आंसर, करेक्ट आंसर? Yes, option D. You got this. Option D is the correct answer. Fine. Any doubts? Any questions? You can raise your doubts and questions. आप लोग आपके doubts, questions जो भी होंगे आप raise कर सकते हो. Don't hesitate. जैसे यहाँ पे commutative property है, तो commutative property का मतलब आता है कि so for example जैसे a plus b, तो a plus b is same as b plus a. तो यहाँ पे ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो और के लिए एंड के लिए यूज की गई है। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। फाइन। सो
I hope you have understood this. Let us go to next slide now and next question. Yeah, next question. One more question I am taking here for practice part. The negation of the compound preposition. ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है या फिर थोड़ा सा अलग वाला क्वेश्चन है. यहाँ से मतलब जो दो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें से ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है आपका. द निगेशन ऑफ द कंपाउंड प्रीपोजिशन. एक कंपाउंड प्रीपोजिशन दिया है उन्होंने. तो इसका आपको क्या लेना है? निगेशन लेना है. पी और निगेशन पी और क्यू इज. इसका आपको क्या लेना है? निगेशन ऑफ दिस प्रीपोजिशन. So what will be negation of this preposition? So let the statement be, statement is negation of P or negation P or Q. Then this negation will be getting inside the bracket. ये bracket के अंदर जाएगा. That is negation P and negation P और Q. उसके बाद में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डी मॉर्गन्स लॉज. यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉज यूज हो गए. तो डी मॉर्गन्स लॉज में क्या मिलेगा आपको? फिर से डी मॉर्गन्स लॉज में आपको मिलेगा निगेशन पी एंड, अब ये जो निगेशन है वो वापस फिर से अंदर चला जाएगा एंड योर आंसर विल बी पी एंड निगेशन क्यू. सो हियर इट वाज और का कन्वर्ट होता है एंड में जब आप डी मॉर्गन्स लॉज यूज करते हैं. फिर नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट पार्ट इज you are using here commutative property that negation P and negation Q is and negation P. So यहाँ पे आपने उसका क्या लिया है? निगेशन ले लिया है. यहाँ पे कहाँ पे भी दिया नहीं था निगेशन सिंबल में, सिर्फ यहाँ पे बताया था आपको निगेशन लेना. So you have taken the negation here. Have you understood this? So the correct option is option A. Option A. What is option A? Option A is P and negation Q and negation P. Hope you have understood this. So this was all about your first chapter. Your first chapter यहाँ पे जो लिया है वो है mathematical logic. उसके बाद next one. So next part is matrices. Matrices बहुत बहुत important chapter है जहाँ से आपको marks मिल सकते हैं. 100% आपको marks मिलने चाहिए यहाँ से. एक भी mark आपका इस chapter के अंदर जाना नहीं चाहिए. It should not go. It should be जैसे आपको अगर नींद से भी उठा के मैट्रिसेस का क्वेश्चन कोई देता है तो वहां पे सॉल्व होना चाहिए आपका. मैट्रिसेस के अंदर कौन कौन सी वैरायटीज है क्वेश्चंस की? जैसे इनवर्स वाले क्वेश्चंस है, डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चंस है आपके लिए. फिर उसके बाद आएंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड, जैसे आइडेम्पोटेंट है, नील पोटेंट है. या फिर उसके बाद जैसे एडजॉइंट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चंस वन बाय वन. So first question, you can see here, first question, solution के साथ में दिया है मैंने ये क्वेश्चन आपको. If adjoint of B, adjoint of matrix B is equal to A, मतलब B का adjoint, B का adjoint क्या है? matrix A है. And determinant of P and Q is equal to 1. So P और Q का determinant क्या है? 1 है. तो अगर determinant 1 है इसका मतलब determinant is not equal to 0. अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका क्या निकल सकता है? यहाँ पे इनवर्स निकलता है. जैसे आपको पता है डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 द मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल. देन एडजॉइंट, आपको दूसरा एडजॉइंट निकालना है. आप किसका एडजॉइंट निकालना है आपको? यू हैव टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ क्यू इनवर्स बी पी इनवर्स इज इक्वल टू. तो ये एडजॉइंट आपको ढूंढना है. ये एडजॉइंट ढूंढने के लिए आपको पहले इनवर्स लेना पड़ेगा यहाँ पे. सो एडजॉइंट ऑफ क्यू इनवर्स बी पी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ P inverse, adjoint of B and adjoint of Q inverse. उसके बाद में आपका जो adjoint of P inverse है, adjoint of P inverse is nothing but P upon determinant of P. क्यों? क्योंकि उसका determinant 1 है. And then adjoint of B is nothing but A and Q upon determinant of Q. So now as the determinant is 1, you get this as PAQ. Hope that you have answered it. You have got the solution. So PAQ. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? फिर C वाला. The option C is right. Okay, let us go for the next question then. This was fourth question. Then let us go for the next question. Next question is question number 5. Question number 5 में क्या है दिया है आपको? Question number 5 में आपको पूछा गया है कि क्या ये मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दिया है वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? What it satisfies. आइडम पोटेंट है, नील पोटेंट है, फिर उसके बाद में इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स है. सो व्हाट एग्जैक्टली
इज दिस ऑल अबाउट। पहले तो मैट्रिक्स पढ़ना चाहिए आपको ढंग से। अगर आप मैट्रिक्स एकदम ढंग से पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स नहीं दिए। नंबर्स आर नॉट गिवन इन दिस मैट्रिक्स। एज नंबर्स आर नॉट गिवन, what are what is given then? So it is वेरिएबल्स दिए यहाँ पे। तो ये वेरिएबल्स कैसे फॉर्म में है? ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर देन माइनस ए स्क्वायर एंड देन ए बी। तो आप देख सकते हैं डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है वो क्या है? सेम है। द एलिमेंट्स ऑन द डायगोनल्स आर सेम। अगर एलिमेंट सेम है डायगोनल पे तो आपको क्या मिलेगा? एलिमेंट सेम है डायगोनल पे तो आपको यहाँ पे इजी जा सकता है। यहाँ पे एकदम इजी होगा सॉल्व करने के लिए। फिर नेक्स्ट, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर इसका स्क्वायर लेते हैं और वही मैट्रिक्स आपको मिलता है तो उसको बोलते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। उसके बाद में आता है नील पोटेंट। व्हाट इज नील पोटेंट मैट्रिक्स? ए रेज टू के इज इक्वल टू 0 एंड a raised to k plus 1 is not equal to 0. Okay, fine. So आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि नील पोटेंट मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपको समझना चाहिए कि नील पोटेंट मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है। कि ए का कोई भी पावर ले लो आप, नॉन नॉन जीरो पावर ले लो आप, तो वो पावर क्या होना चाहिए? दैट पावर मस्ट बी इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर वो 0 आता है तो आप बोलते हैं उसको नील पोटेंट मैट्रिक्स, लेकिन उससे आगे वाला जो भी पावर है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। फिर उसके बाद आता है इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स ये शायद पहली बार सुना होगा आपने। सो व्हाट इज इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स? अगर ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी, वेयर आई इज आइडेंटिटी, देन यू कॉल ए एज द इनवॉलेंटरी। सो ए को आप इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स बोलते हो के बाद में। एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको तुरंत एक काम करना है, जैसे मैट्रिक्स दिखता है 2x2 ऑर्डर का, आपको आइडेम्पोटेंट दिखाना है या फिर नील पोटेंट दिखाना है या फिर इनवॉलेंटरी दिखाना है। इसके अंदर जो ये दो क्वेश्चन है, आइडेम्पोटेंट वाला और नील इनवॉलेंटरी वाला, इसके अंदर आपको स्क्वायर लेना है, मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ऑप्शन पे से आपको समझना चाहिए कि आपको यहाँ पे स्क्वायर लेके देखना चाहिए मैट्रिक्स का। अगर आप तुरंत स्क्वायर लेते हो तो आपका आंसर मिलेगा आपको 0 0 0 0। आपको मिल गया 0, जहाँ पे आपको आइडेंटिटी मिलना था या फिर आपको मैट्रिक्स ए मिलना था लेकिन 0 मिल गया। अब क्या करोगे आप? जैसे ही आपने ए स्क्वायर लिया आपको 0 मिला, तो ये प्रॉपर्टी होती है नील पोटेंट की। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ नील पोटेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ऐसे वाले क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स का एक सवाल होता है, उनको पूछना होता है कि सर अब नील पोटेंट है या आइडम्पोटेंट है तो कैसे पता करेंगे? तो इसका शॉर्टकट ट्रिक है कि आप ऑप्शन देखो। ऑप्शन क्या है? आइडम्पोटेंट है, नील पोटेंट है, इनवॉलेंटरी है। तो ये 3 ऑप्शन में जो 2 ऑप्शन है वो पूछते हैं आपको स्क्वायर निकालने के लिए। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं आपका एग्जामिनेशन वाले। आप पढ़ाई तो करके आए हैं लेकिन आप किस तरीके से आपका नॉलेज वहां पे अप्लाई करोगे ये चेक करना है उनको। सो स्क्वायर लेना है आपको। जैसे ही आपने स्क्वायर लिया आपका 0 आंसर आता है, तो ये बनता है आपका नील पोटेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। समझ में आया आपको? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एकदम इजी है, सब लोग इसको आंसर कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपको प्रॉपर्टीज पता है मैट्रिक्स की। सो मैट्रिक्स ए इज एन 10x10 मैट्रिक्स। कोई नंबर तो दिया नहीं है, बस ऐसे बोला 10x10 मैट्रिक्स है। तो 10x10 का मीनिंग होगा उसका रोज 10 है, कॉलम्स भी 10 है। इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर है मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मतलब जितने भी डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स है वो सब क्या है? 0 है। अब डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स तो 0 है। अब क्या फिर? मैट्रिक्स तो 10x10 है विथ 8 10 10, मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट, कौन सा लास्ट वाला एलिमेंट है? 10 10 वाला। ओके, 8 10 10। फाइन। तो ये 8 10 10 वाला जो एलिमेंट है, जो कि एकदम लास्ट वाला एलिमेंट है, तो वो जो लास्ट वाला एलिमेंट है, वो लास्ट वाला एलिमेंट है 0। व्हाट इज द लास्ट वन एलिमेंट? The last one element is 0. Now as the last one element is 0, so आपको find out करना है इसका determinant. Now you have to find out the determinant. So what is determinant of this matrix?
10, 1, 0, 100, you can comment. आप chat section में बता सकते हैं मुझे what is the answer. If you want to answer it immediately, you can answer immediately. आप लोग आंसर दे सकते हैं इसका. इसका प्रॉपर्टी है द मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर. तो आपका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द डायगोनल. तो जो भी डायगोनल्स है उसका प्रोडक्ट आएगा आपके पास. तो अब जैसे आप प्रोडक्ट लेते हो डायगोनल का, तो इसका मतलब आपका एक एलिमेंट है 0, बाकी के एलिमेंट कुछ भी हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको. आपको ये 0 फर्क देता है. इसी का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ करो, आपका आंसर आएगा 0. तो आपका आंसर है सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आई होप समझ में आया है आपको सबको. नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, बढ़ते हैं सर्कल्स की तरफ. तो सर्कल्स के अंदर हम लोग 2 मार्क का एक क्वेश्चन लेंगे. एंड द क्वेश्चन इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू. ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है. बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते कि सर कौन से फॉर्मूलाज यूज करने हैं, क्या प्रॉपर्टीज यूज करने हैं. एकदम बेसिक होता है. आपको बस वहां पे ट्रिगर होना चाहिए. आप कैसे ट्रिगर होगा? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको ट्रिगर होता है क्योंकि आप तो बहुत पढ़ाई कर लिए, आपने ये कर लिया. ऐसा कुछ नहीं है. आपको भी हो सकता है. यू कैन ऑल्सो डू इट. आप भी कर सकते हैं एट अ स्टिंज, मतलब एक चुटकी बजा के आप जैसे कर सकते, तुरंत कर सकते, थैनोस की जैसे. तो कैसे होगा ये? सबसे पहले एकदम बेसिक पार्ट आपको ध्यान में रखना है. लाइन थ्रू पॉइंट पी, एक पॉइंट दिया है, पॉइंट पी 1,4 इंटरसेक्ट्स अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16. एक पॉइंट है जो कि आउटसाइड है. पॉइंट पी इंटरसेक्ट्स द सर्कल, तो वहां से एक लाइन आती है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है एट ए एंड बी. तो वो जो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट करती है ए एंड बी. देन पी ए, मतलब जो डिस्टेंस है पी ए इंटू पी बी, आपको फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस पी ए इंटू पी बी क्या होगा. 1, 2, 3 एंड 4. बहुत इजी है इसका आंसर. सिंस पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर. कुछ लोग बोलेंगे सर व्हाट इज दिस पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, वेयर पी टी इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. तो ये किसकी लेंथ होगी? टेंजेंट की लेंथ. दिस विल बी लेंथ ऑफ टेंजेंट. नाउ एज इट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, so लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? pt इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s1. so what is under root of s1? under root of s1 is root of 1 square plus 4 square minus 16. now what is 1 square plus 4 square minus 16? this 16 is the radius of what? circle. and what is 1 and 4? I hope आपको ये दिखाई दे रहा है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके ये चल रहा है. So which is the correct answer? The correct answer is option A, 1. 1 है इसके लिए. So यहाँ पे क्या किया है? root 1 square plus 4 square minus 16. So we have used the formula. Fine. So let us go for this next question. Next question is question number 8. Question number 8 जो कि एक सर्कल का ये क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे आपके लिए. The value of C for which y is equal to 2x plus c line is a tangent to the circle x square plus y square is equal to 16 is. तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये टेंजेंट है. किसके लिए टेंजेंट है? सर्कल के लिए टेंजेंट. अब आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे c का वैल्यू. आंसर भी दिया है आपके सामने यहाँ पे. y is equal to 2x plus c, this is the line, and this is tangent to the circle x square plus y square is equal to 16. Same circle. We have आपके पता है कि y is equal to mx plus c is a tangent to a circle. Which circle? x square plus y square is equal to a square. Then c का वैल्यू आता है, एक फॉर्मूला है डायरेक्टली, वैल्यू ऑफ c is equal to plus minus a under root 1 plus m square. What is a under root m square? So what is m? m is nothing but y is equal to mx plus c. यहाँ से आता है आपका m. and what is this a? a is nothing but radius. तो आपका 16 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर आएगा. so value of a is equal to 4. so c is equal to plus minus 4 under root 1 plus
m is equal to 2, 2 square. So what is 2 square? 4. So your answer is plus minus 4 under root 5. Very easy question, जहाँ पे आपके पास एक लाइन दी है और वो टेंजेंट है, ऐसे बताना है आपको. नेक्स्ट, so option B is the correct option. B is the correct option because here plus minus sign नहीं है, तो आपको एक ही साइन कंसीडर करनी है, प्लस साइन कंसीडर करनी है यहाँ पे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन. द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. एक स्क्वायर है जो कि सर्कल के अंदर बैठा हुआ. स्क्वायर कहाँ पे बैठा है? सर्कल के अंदर बैठा है. तो स्क्वायर इज इनसाइड द सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ स्क्वायर. तो आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है. तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हाउ कैन यू फाइंड आउट एरिया ऑफ स्क्वायर? दिस लॉजिकल क्वेश्चन. यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना होगा तुरंत आपको. जैसे आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो भी डायगोनल है स्क्वायर का, वो डायमीटर एक्चुअली. द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, तो वो डायगोनल होगा. एंड देयरफॉर यू गेट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. देयरफॉर रेडियस, यहाँ पे रेडियस जो है सर्कल का आपके, रेडियस आएगा 5 यूनिट्स. आपके सर्कल का रेडियस आता है 5 यूनिट्स. आफ्टर यू कैलकुलेट दिस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, व्हाट इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हियर? दिस इज 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर is 9. 9 plus 4 square. 4 square is 16. 9 plus 16 is equal to 25. इसका आपको स्क्वायर रूट लेना है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 5 यूनिट्स. तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये एच स्क्वायर कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? तो आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2hy इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से आपके 2h, तो यहाँ पे 6 दिया है, तो 2 इंटू 3, 2 3 is 6, so वो h is 3 and k is 4. तो यहाँ पे आपका रेडियस 5 यूनिट है. अब रेडियस अगर 5 यूनिट है तो डायमीटर कितना होगा? डबल, मतलब 2 टाइम्स होगा. द डायमीटर विल बी डबल. नाउ एज अ डायमीटर इज डबल, so you have calculated now diameter, but what is diameter? Diameter is nothing but the diagonal of square. Now you have diagonal of square and you have to find out area of square. So the answer is diagonal square upon 2 is the area. So 100 upon 2 is equal to 50 units. So your answer is 50 units. Option B is the correct answer. Okay, I hope you have understood this. Now let us go to conics, parabola, ellipse and hyperbola. So conic सेक्शन के अंदर पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, तो इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला पॉइंट. So let us go to question number 10. The distance between the directrix of the ellipse. आपको directrix of the ellipse का distance find out करना है. So while finding out this distance of directrix of ellipse, कैसे find out कर सकते हैं? तो a square is equal to 36 दिया है यहाँ पे, b square is equal to 20 दिया है. आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स पता है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट. सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 36, b स्क्वायर इज इक्वल टू 20. नाउ डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 2a अपॉन e. ये फार्मूला है आपके पास. द फार्मूला इज 2a अपॉन e. सो व्हाट इज e देन? e इज द इसेंट्रिसिटी. So to find out eccentricity is equal to under root 1 minus b square upon a square. ये second formula है, दो formulas use हो गए यहाँ पे. Is equal to under root 1 minus b square upon this 36. So b square का value है 20 upon 36. After simplification you get this as 4 upon 6. I hope you have understood this. This is equal to 2 by 3. It should be 36 minus 20 upon 16, so it will be 16 upon 36. So it's not 20 upon 36 here, it is 16 upon 36. Then 16 upon 36, which is equal to 4 upon 6, that is 2 by 3. What is 2 by 3? E is equal to 2 by 3, eccentricity. So you substitute here the values of eccentricity and immediately you can get the value of this distance. Distance is equal to 2 into 6 upon 2 by 3. So your answer is now 18.
Why your answer is 18? This 2 gets cancelled. 6 multiplied by 3. 6 3 is 18. This type of questions are expected to ask. आपको JEE लेवल का जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन ऐसे आता है कि 2 चैप्टर्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन फॉर्म होता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे हाइपरबोला है तो ये हाइपरबोला के चैप्टर का क्वेश्चन है। कुछ लोग बोलेंगे इधर स्लोप पूछा है तो शायद लाइन का क्वेश्चन है। फिर कुछ लोग बोलेंगे स्लोप है तो डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। तो ये मिक्स सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। तो ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं मिक्स सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आपको आपका लॉजिक बहुत अच्छा रखना है और जैसे आप लोग स्टडी कर रहे हो उस हिसाब से भी आप स्टडी कर रहे हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, प्रोवाइडेड आपका स्टडी एक सही मैनर में, हाँ, इट इज इन करेक्ट वे. So how it is in correct way? What is the correct way to study? Tip number 2, very important tip. How you should study. Now this is not the time where you should daily start a new chapter. You should start reading that chapter and you will get everything about that chapter. No, don't do this. The most important thing is you pick up your book. From that book you get some questions. एक questions ले लो आप क्वेश्चन पेपर में से या बुक में से और उसको आपका जो भी नॉलेज है वो यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करो. जहां पे आपको लगता है मुझे नहीं आ रहा ये, यू रेफर टू द चैप्टर देन. तब जाके आपको चैप्टर में रेफर करना है तो तुरंत आपको समझ में आएगा हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है. इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है. एंड दिस एग्जामिनेशन इज अबाउट टैकलिंग द क्वेश्चंस. ये एग्जामिनेशन आपका नॉलेज, कि कितना नॉलेज है आपको ये तो चेक करेगी क्योंकि आप क्वेश्चंस टैकल करने वाले हो तो ठीक है. लेकिन कभी कभी ऐसे होता है सर मुझे सब कुछ आता है, ये आता है वो आता है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दैट. एंड द मेजर रीजन इज यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस नहीं किया आपने, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. आपका नॉलेज तुरंत ऐसे ब्रशअप हो जाएगा. कैसे ब्रशअप होगा? जब तक आपके ब्रेन को चैलेंज नहीं करते हो आपका ब्रेन वर्कआउट नहीं करेगा आपके लिए. So this question is, what is the slope of the tangent drawn to the hyperbola xy is equal to a, where a is not equal to 0 at the point a comma 1. So on you have to differentiate this. क्या differentiate करना है आपको? You have to differentiate the equation xy. Use here UV rule of differentiation. So x dy by dx you are differentiating with respect to x. So you will get x dy by dx plus y into 1. X का derivative आता है 1. So is equal to 0. What is a? A is a constant. So you get here 0. So dy by dx, value of dy by dx is minus y upon x. So what is dy by dx? Dy by dx is nothing but slope. So slope at that point. So a comma 1. So substitute a comma 1. A is x and 1 is y. So put here 1 and a. So your answer will be minus 1 upon a. So which is the correct option then? Option A is right. Okay. Next, let us go to the next question. Question number 12. Question number 12 is if, question number 12, if 5x square plus py square is equal to 20 represents a rectangular hyperbola at point at p is equal to, okay. So value of p find out करना है, p का value. So how you will find out value of p? 5 minus 5 4 and minus 4. So for triangular hyperbola we get so rectangular hyperbola के लिए आपके पास है coefficient of x square plus coefficient of y square is equal to 0. So p is equal to minus 5. What is coefficient of x square? 5. So you got here 5 square plus, then this will be p square. So 5 square plus p square, that is 25 plus p square is equal to 0. So you get p is equal to minus 5. I hope you have got the answer. So p is equal to minus 5 is the correct answer. So now let us go to trigonometric functions, which gives you 2 questions here. So the first question is sine. Now it is given that what is value of sine. So sine का value कितना है अभी आपको यहाँ पे दिया है. What is value of sine? So sine is equal to, then sec plus cosec a is equal to n. Then the value of m into n plus 1 and m minus 1. Sin a plus cos b is equal to m and sec a plus cosec a is equal to n. You have to substitute these values here in place of m and n and immediately convert it in terms of sin and cos. Now 2 times sin a into cos a, this sin a cos a gets cancelled here. So your answer is 2 times sin a plus cos a. What is sin a plus cos a? Sin a plus cos a is equal to m. So your answer is 2 times m. Immediately you can answer this question. So 2m is the correct answer.
Then 14th example 14, if tan a is equal to half and tan theta is equal to half and tan phi is equal to 1 by 3, then the value of phi plus theta. Now you have to find out here value of phi plus theta. While finding out value of phi plus theta, you get that theta is equal to half and phi is equal to tan phi is equal to 1 by 3. Now tan theta is given and tan phi is 1 by 3. So you have to find out the values. So you know the formula for tan phi plus theta. What is tan phi plus theta? Tan phi plus theta is equal to tan theta plus tan phi upon 1 minus tan theta into tan phi. This is the most used formula. बहुत बार यूज होता है ये फॉर्मूला. कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए. उसमें से पहला फॉर्मूला है, आप लोग लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस फॉर्मूलाज. जैसे कि साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है. दूसरा है कॉस ए प्लस बी, देन साइन ए माइनस बी, देन कॉस ए माइनस बी, देन tan a प्लस बी. तो tan a प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे tan ए एंड बी की जगह पे थीटा एंड फाई यूज किया है. सो tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा एंड tan फाई. अगर यहाँ पे माइनस साइन है बीच में, तो ये नीचे वाला प्लस हो जाएगा और ऊपर माइनस साइन आएगा, तो फॉर्मूला में चेंज होगा. यहाँ पे tan theta plus tan phi is equal to, you are substituting the values. After substituting the value, you get it as pi upon 6 upon 5 upon 6. Pi upon 6 upon 5 upon 6 is equal to 1. So tan of theta plus phi is equal to 1. तो यहाँ पे tan inverse लेना है आपको. तो tan inverse of 1. तो किसका वैल्यू 1 आता है? The actual value is pi by 4. So pi by 4 tan theta plus tan theta plus phi is equal to 1. इसका मतलब आएगा tan inverse of 1. So theta plus phi is equal to pi by 4. The correct option is option D. Hope you got this. अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं तुरंत. You can ask. Don't hesitate. Now one more question of this same sort. If a plus b plus c and is equal to pi and a cos a is equal to cos b into cos c, then tan b into tan c is equal to, मतलब प्रोडक्ट पूछा आपको tan b and tan c का. यहाँ पे कहीं पे भी आपको दिखेगा कि tan b and tan c का वैल्यू तो नहीं दिया है, लेकिन प्रोडक्ट पूछा है. तो कैसे डील करना है इस क्वेश्चन को? हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन फर्स्ट? While starting this question, it is given that a plus b plus c is equal to phi. a plus b plus c का वैल्यू कितना है? phi आता है. पाई आता है. तो a इज इक्वल टू, a का वैल्यू आता है पाई माइनस b प्लस सी. ये b प्लस सी को वो साइड में लेके गए आप लोग, राइट साइड में आपका आंसर होगा पाई माइनस b प्लस सी. नाउ टेक cos ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज ये cos a का वैल्यू दिया है आपको. सो cos a इज इक्वल टू cos b इंटू सी. cos a का वैल्यू है cos b इंटू सी. सो cos a इज इक्वल टू cos पाई माइनस b प्लस सी. So what is cos pi minus theta? Cos pi minus theta, the answer is minus cos theta. So your answer is minus cos b plus c is equal to cos b plus c. Cos b into c. Now you got here these values. So what is cos b plus c? ये फॉर्मूला मैंने पूछा था आपको. यहाँ पे प्लस साइन आता है, तो इसके बीच में माइनस साइन आएगा. माइनस cos b into cos c माइनस sin b into sin c is equal to cos b into cos c. This is equal to sin b sin c, which is equal to minus cos b cos c. अब आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके जाना है इसको, cos b and cos c को. तो जैसे आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे, वो होगा sin b अपॉन cos b sin c अपॉन cos c is equal to tan b into tan c is equal to 2. Very easy question. बट इसका फ्रेम देख लो किस तरीके से फ्रेम आउट किया गया है इस क्वेश्चन को. आपको यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दी है एंड cos a cos b एंड cos c. तो इसका एक शॉर्टकट तरीके है कि आपको एनालाइज करना है ये इन दोनों क्वेश्चंस में. यहाँ पे tan b एंड tan c दिया है, सो cos लेना है आपको. किसका cos लेना है? cos a. आफ्टर टेकिंग cos a you will immediately get the solution and the answer is option B. 2 is the correct answer. Now let us go to trigonometric functions of compound angles. ये यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तुरंत लेते हैं हम लोग ये क्वेश्चन. y is equal to 1 plus 4 sin square x cos square x. देन रेंज पूछा है. अभी इसका रेंज बताना है आपको कि y किधर लाई करेगा, मतलब ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है. ये दो कैटेगरी में आ सकता है. एक तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल्स में पूछा जा सकता है, और दूसरा है इसको आप पूछ सकते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन, मतलब फंक्शन वाले चैप्टर में भी पूछ सकते हैं.
सो यहाँ पे आपको पहले देखना है कि y इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स? द आंसर इज साइन स्क्वायर 2x. मतलब आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये बड़ा वाला था तो इसको छोटा कर दिया अभी यहाँ पे. y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर 2x. बहुत बार यूज होने वाला फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. या क्वेश्चन इज देयर? Okay, so there's, yeah, fine. If you have a question, then you can raise your question in the chat box. Fine. So 1 plus 4 sin square x into cos square x. यहाँ पे क्वेश्चन आता है. हाँ, और वो क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में. ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं. सो जैसे मैंने आपको एक 4 फॉर्मूलाज का लिस्ट पहले बताया, अब उसके अंदर और एक ऐड करना होगा आपको. या you can raise your question. So Sahil D, you can raise your question at the end. हाँ, आप लिख के रखो आपका क्वेश्चन चैट बॉक्स में, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा. कुछ लोग बोलेंगे सर चैट बॉक्स में लिखने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आपने आपका नोटबुक लिया होगा तो नोटबुक के अंदर क्वेश्चन लिख के रखो. लास्ट में मैं आपको थोड़ा टाइम स्लॉट दूंगा कि जहाँ पे आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ लोगों को लगेगा कि सर जो फॉर्मूला है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, ये फॉर्मूला है. तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर की वजह से आपका जो भी फॉर्मूला है वो ऐसे होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर. तो ब्रैकेट का स्क्वायर है तो अंदर वाली टर्म तो है साइन 2x, तो इसीलिए आपका होगा साइन स्क्वायर 2x. सो 1 प्लस साइन स्क्वायर 2x. So what do you know now? You know that sin 2x की रेंज पता है आपको. What is range of sin 2x? तो sin 2x lies between 0 and 1. 0 and 1 के बीच में. sin जो है वो 0 and 1 के बीच में लाई कर, तो उसका जो स्क्वायर लोगे आप तो वो भी वहाँ पे लाई करेगा 0 and 1 के बीच में. तो 0 is less than equal to sin square 2x is less than equal to 1. Add 1 on both sides. 1 is less than equal to 1 plus sin square 2x is less than equal to 1. 1 plus 1 आएगा, तो 1 plus 1 is 2 here. So you get 1 is less than equal to y is less than equal to 2. And which is the correct option then? Correct option is option A. I hope you got this. Then let us go to vectors. Vectors जो कि बहुत important chapter है. बहुत ज़्यादा इस पे वेटेज दिया जाता है, 6 मार्क्स का वेटेज है. और ये सिर्फ यहीं पे नहीं, बहुत सारी जगहों पे एप्लीकेबल है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आता है ये क्वेश्चंस. So the first question is the value for which x into I cap plus j cap plus k cap is a unit vector. For which this vector, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए. तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. So you get here as x is equal to plus minus 1 upon root 3. You can get it. It's very easy. डिटर्मिनेंट का ही बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे. इट्स अ मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड वाली साइंस है और डिटर्मिनेंट वाली साइंस है दे आर क्वाइट सिमिलर हियर. So it's a magnitude here. So let us go for the correct option. Correct option is option A. So question number 18. Let us go for question number 18. Question number 18 is here theta is the angle between any two vectors. Theta एक angle है दो vectors के बीच में. And then determinant of magnitude of A dot B is equal to A cross B when theta equals. तो थीटा इक्वल कब होगा? यहाँ पे थीटा का वैल्यू ऐसा आपको ढूंढना है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का है वो दोनों भी सेम होना चाहिए. तो यू गॉट दैट. व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट. सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन थीटा. ये साइन थीटा वाला आता है क्रॉस प्रोडक्ट से और ये वाला आता है डॉट प्रोडक्ट से. सो बोथ आर इक्वल. ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. तो व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू 1 implies is pi by
4 क्योंकि इसकी वैल्यू आती है पाई बाय 4. नाउ यू गॉट दिस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी मिलेगा आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर पाई बाय 4. लेट अस गो नेक्स्ट. द वैल्यू ऑफ a into b plus c into a plus b plus c is equal to. So this value is equal to what? 0 a b c. Now you have to find out what this value is. While finding out this value, a into a plus c cross a plus b plus c. Now you are using here, first of all, cross product. So your answer will be minus a cross b plus b cross c plus c cross a plus c cross b. I hope you have got this. You got this as minus into a and this on. So that is a into minus a cross b plus c into a. Now when you take this product minus a cross b plus c cross a, your answer will be equal to 0. So your correct option is option A. And why it will be? Because you're taking a into all this minus a cross b plus c cross a. So your answer will be 0. Next, let us go for question number 20. Question number 20 is let u, v and w be vectors such that u plus v plus w is equal to 0. If magnitude of u is equal to 3, magnitude of v is equal to 4, then w is equal to 5. Then you have to find out u dot v plus v dot w plus w dot u is equal to. So you are going to find out, first of all, magnitude of u plus v plus w. So magnitude of u plus v plus w, that is u plus v plus w bracket square is equal to, you are using here the formula a plus b plus c bracket square. You get this after using this as 0, मतलब इसका जो भी वैल्यू है वो 0 है, that is equal to 9 plus 16 plus 25 plus 2 into u dot v plus v dot w plus w dot u. You got here this as minus 25. So which is the correct answer? Option C is the correct answer. Let us go to three-dimensional geometry here. Now when you go to this three-dimensional geometry, let us start with the question first here. If a line makes an angle pi by 4 with each of y and z axis, then the angle made with x axis is x axis के साथ में आपको एंगल फाइंड आउट करना है जो कि पाई बाय 4 है पहले से x एंड y एंड z के साथ में, आपको सिर्फ x के साथ में एंगल फाइंड आउट करना है. नाउ व्हाइल फाइंडिंग आउट द एंगल, लेट द एंगल बी x या फिर लेट द एंगल बी अल्फा. तो पहले से एंगल जो है वो आपको डिसाइड करना है कि एंगल इज अल्फा. तो x y एंड z एक्सिस के साथ में आपको ये मिलता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर. या if you have any doubts, you can write or you can mention those doubts in the chat section. आप लोग chat section में आपके doubts raise कर सकते हो. You can raise your doubts in the chat section. So you can, the option is given here. You can raise your doubts in the chat section. Yeah. So here you get this value is equal to 1. Why this value is equal to 1? Because cos alpha plus cos this, cos that is equal to 1. So what are this? These are direction cosines. ये direction cosines है. So you know that for direction cosines, L square plus m square plus n square is equal to 1. ये किसके लिए होता है? एक लाइन के लिए with so you get cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. So you get here cos square alpha plus cos square pi by 4 plus cos square pi by 4 is equal to 1. So cos square pi by 4 is half plus half. So you get here answer as cos square alpha is equal to 0. So cos square alpha is equal to 0 implies this cos alpha is equal to 0. So alpha is equal to pi by 2. So pi by 2, option A is the correct answer. Here. Let next question. If the projection of a line segment on x, y and z, ये यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है. प्रोजेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं. प्रोजेक्शन के ऊपर तो आपको प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है. किसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑन x, y and z axis are 3, 1 and under root 15 respectively. Then the length of the line segment, projection की लेंथ दी है
एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एंड जेड एक्सिस पे, लेकिन आपको लाइन सेगमेंट की लेंथ नहीं पता, लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लाइन सेगमेंट है इसके डायरेक्शन कोसाइंस, द डायरेक्शन कोसाइंस, ये लेना विद द डायरेक्शन कोसाइंस। हाँ, लाइन सेगमेंट भी आर्क। सो ये जो आर्क है लाइन सेगमेंट का क्या है, व्हाट इज आर्क? आर्क इज नथिंग बट length of the line segment. So you get projection on x, y, and z axis as LR, MR, and NR. So now you got this value, L square R square plus M square N R square plus N square R square is equal to 3 square plus 1 square plus under root 15 square into R square. So addition of this is nothing but 25. So R square is equal to 25. So R is equal to what? Value of R is equal to 5. So your answer is 5 units. This is the correct answer. Then let us go for, yeah, we are discussing in this 3-dimensional geometry, the plane. Now इसके अंदर हम लोग plane के बारे में discuss करेंगे 3D में. 2x minus y plus 4z is equal to 5, and these are equations of plane. So these equations perpendicular है या parallel है या जो भी है, तो आपको पता करने की है कैसे, तो आपको इसके डायरेक्शन रेशियो से पता चल जाएगा कि ये क्या है. You will immediately get it from the direction ratios. So you got that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. ये वैल्यूज सेम है, तो ये वैल्यूज 4 upon 10 है, एंड देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो अगर इक्वल है तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट, दैट इज पैरेलल. नेक्स्ट, द लाइंस, these two lines are coplanar. If coplanar मतलब एक ही plane में lie करते, तो when does they lie in one plane? When the determinant is equal to 0. कौन सा determinant equal to 0? So the determinant of x1 minus x2, y1 minus y2 and z1 minus z2 upon x1 y1 z1 x2 y2 and z2. So these values are equal. So you get this as 2 minus 1, 3 minus 4, 4 minus 5. So this determinant is equal to 0. So what is value of k? Calculate the determinant, you get value of k is equal to minus 3 or 0. Now here you don't have any value as minus 3. So minus 3 कहीं पे नहीं है, तो आपका आंसर क्या आता है? 0. Your answer is option A. That is the correct answer. Then 25, example number 25. This is for the डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर, मतलब जो डिस्टेंस ढूंढना है उसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपकी एग्जामिनेशन में. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -2, 1 फ्रॉम द प्लेन. एक पॉइंट दिया है जो कि प्लेन के बाहर है, वहां से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग डिस्टेंस? तो d इज इक्वल टू मॉड ऑफ. मॉड क्यों लिया है? क्योंकि ये डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता कभी. कुछ लोग बोलेंगे सर अगर ऑप्शन दिया है डिस्टेंस नेगेटिव और हमने टिक किया तो क्या होगा? सो प्लीज डोंट डू इट. यू शुड हैव कॉमन सेंस दैट डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव लेना है. a x1 plus b y1 plus c z1 minus d upon root of a square plus b square plus c square. What is a, b and c? a, b and c are nothing but the direction ratios. यहाँ पे दिए डायरेक्शन रेशियोज 2, -1 and -2. And then after this, what is x1 y1, x1 y1 and z? Now what is z here? So z is 1. So 3 -2 and 1. So इसका प्रोडक्ट लेना है. And what is d? d here is nothing but this term 3. So your answer comes out to be 13 upon 3. After you solve this, so you get it. These points are, तो अब ये तीनों भी पॉइंट्स क्या है? कोप्लेनर है, कोलिनियर है, फॉर्मिंग अ स्क्वायर है, या फिर फॉर्मिंग अ ट्रायंगल है. तो आपको ज्यादातर ध्यान देना है फॉर्मिंग स्क्वायर, फॉर्मिंग ट्रायंगल के ऊपर नहीं ध्यान देना है आपको. यू हैव टू चेक द कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी. आपको तुरंत कोप्लेनरिटी की कंडीशन चेक करनी है. कोप्लेनरिटी की कंडीशन यही है कि वो एक प्लेन में लाई करते हैं ये तीनों भी पॉइंट्स. सो व्हाइल दिस 3 पॉइंट्स लाई in the same plane, your answer will be CD is equal to 3 by 4 AB plus 1 by 4 BC. Now what is CD? These are the points. इसको नाम दे सकते हैं आप. पहले पॉइंट को A, second B, third C and then D. Then you find out what are their डायरेक्शन रेशियोज. उसके बीच में जो भी लाइंस होंगे उसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करो. आपको मिलेगा CD, AB and BC.
So you got it as coplanar. Next, sets, relation and functions. इसके ऊपर question number 27 we are going for. So if A is equal to this set x such that x square is equal to 1 and B is equal to x such that x raised to 4 is equal to 1, then A then value of A triangle B is equal to. Now you should get this key A minus B union B minus A पूछा है आपको. That the triangle का meaning होगा A minus B and B minus A. कुछ लोग बोल गए होंगे कि triangle क्या होता है यहाँ पे. So that is A triangle B is nothing but A minus B union B minus A. तो पहले आपको A minus B find out करना है, फिर B minus A find out करना है. What is A minus B here? So पहले set A find out करना है. X square is equal to 1. तो ऐसे numbers जिसका square 1 आता है. Which are these two numbers जिसका square 1 आता है? That is 1 and minus 1. Then x raised to 4 is equal to 1. तो ये है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इसको बोलते हैं. तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आता है 1 minus 1 and plus 1. 1 minus 1 I and minus I. ये आएंगे चार रूट्स ऑफ यूनिटी. क्योंकि इसका रेज टू पावर 4 लोगे आप तो आपको मिलेगा 1. तो a माइनस बी आएगा जो कि ऐसे नंबर्स जो कि a में है और उसको हम लोग b से क्या कर रहे, सब्ट्रैक्ट कर रहे. तो ऐसा कुछ है कि जो बचेगा यहाँ पे ये दो नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आपको जो ये दो नंबर्स दिखते हैं कि i माइनस आई, तो ये यहाँ पे नहीं ले सकते हम लोग. वी कैन नॉट टेक इट क्योंकि हमें उसको b में से सब्ट्रैक्ट, b में है ही नहीं ये नंबर्स. सो यू गेट a माइनस b इज इक्वल टू 5 एंड a minus b is equal to 5 and b minus a is equal to minus I and plus I. So you got it as a triangle b is equal to b minus a and union a minus b. So you got your answer as minus I and plus I. Union लेना है यहाँ पे, so option is the correct answer. डोमेन फाइंड आउट करना है. मैंने बताया था आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जहाँ पे आपको डोमेन फाइंड आउट करना पड़ेगा. डोमेन मतलब जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है. फंक्शन डिफाइंड है मतलब वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आता है या फिर फंक्शन इज नॉट टेंडिंग टू इन्फिनिटी. तो ऐसा होगा तो क्या फाइंड आउट करना है आपको. तो यहाँ पे रूट दिया है, रूट के अंदर आपको एक साइन है, स्क्वायर रूट के अंदर आपको बताया गया है यहाँ पे. तो माइनस साइन का कभी भी रूट नहीं निकलता. यू कैन नॉट फाइंड आउट root of a negative number, and as you are not able to find out root of a negative number, you get this as root of a square minus x square. f of x is equal to root of a square minus x square. तो आपको ये पॉजिटिव चाहिए. कौन सा? ये इनर नंबर a square minus x square is greater than equal to 0. So when this is greater than equal to 0, so take x square towards this side, you get x square is less than equal to a square. Check this sign. ये साइन में जो चेंज हुआ है वो चेक करना है आपको. यहाँ पे जो it was greater than equal to 0, तो अब यहाँ पे आपने लिया x square is less than equal to a square. This implies is x belongs to minus a comma plus a. अब x square is less than equal to a square, तो positive है, a square is positive and therefore both values will be taken here. So x is equal to x is less than equal to plus or minus a. तो ये क्लोज्ड लेना है यहाँ पे, ओपन नहीं लेना. आई होप यू नो व्हाट इज क्लोज्ड इंटरवल्स एंड ओपन इंटरवल्स. क्लोज्ड इंटरवल्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे a एंड माइनस ए इंक्लूड होगा और ओपन इंटरवल्स होते हैं जहाँ पे a एंड माइनस ए नॉट इंक्लूड होगा. सो सीक्वेंस एंड सीरीज. इसके ऊपर दो क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क का होगा. इंसर्ट 3 नंबर्स आपको इंसर्ट करने हैं यहाँ पे. यू हैव टू इंसर्ट 3 नंबर्स व्हिच आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि एपी में है. तो कौन से होंगे ये 3 नंबर्स? वेरी इजी. तीनों नंबर्स आपके अरिथमेटिक मीन में है. तो यहाँ पे टोटल नंबर्स होंगे आपके 5. सो आपका जो लास्ट वाला नंबर है an, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर an इज इक्वल टू, yes, anyone can write it in the comment section if you want. What is value of an is the last term in arithmetic progression in AP. So an is equal to, what is value of an then? Yeah. So from this you get that an is equal to a plus n into a plus n minus 1 into d. So you get here that a plus n minus 1 into d is equal to an. So d यहाँ से ढूंढ सकते हैं आप. d is equal to what is d? d is an minus a upon
n minus 1. So how many terms you have total? पहले के 3 and this 2, 5 terms. So you get 19 minus 3 upon 5 minus 1, which is 4. You got D. D मिल गया अभी आपको. पहला टर्म है आपके पास 3. So as the first term is 3, 3 plus 4, 3 plus 4 is 7. So you got first term 7. कहाँ पे कौन सा ऑप्शन में 7 है? बी वाले में 7 है. तो आपका मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 30. ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जा सकता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो a raised to 1 upon x is equal to b raised to 1 upon y is equal to c raised to 1 upon z. और यहाँ पे दिया है a b c आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब जो नंबर्स है a b एंड c दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. उसका जो एक्सपोनेंट है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से प्रोग्रेशन में है. सो व्हाइल फाइंडिंग आउट दिस, these values are equal, and this is equal to what? k. ये सब k के इक्वल. तो आप सेपरेटली लेते हैं इसको. a raised to 1 upon x is equal to k, b raised to 1 upon x is equal to k, and c raised to 1 upon x is equal to k. Taking the x root, तो x पावर लेते हैं इसका. So after taking x power, you get a is equal to k raised to x, b is equal to k raised to y, and c is equal to k raised to z. So you got here a, b, and c are in geometric progression. So b square is equal to, what is value of b square? B square is equal to ac. This implies is k raised to 2y. So यहाँ पे b square का वैल्यू कितना आता है? ac आता है. तो b square is equal to ac implies is k raised to 2y. k raised to 2y का वैल्यू कितना होगा? k raised to 2y is equal to k raised to x into k raised to z. क्योंकि ये सब वैल्यूज क्या है? सेम है, इक्वल है. तो अब ये वैल्यूज अगर इक्वल होंगे तो आपको क्या मिलेगा? k raised to 2y is equal to k raised to x into k raised to z. So you got these values then. So these values are equal to k raised to x minus z, x plus z. So k gets cancel, x plus z is equal to 2y. It implies is ये किस में? AP में. AP का मतलब होता है कि x plus z, जो कि फर्स्ट टर्म है एंड लास्ट टर्म. एडिशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मिडल टर्म. ये आपको पता होना चाहिए. ये जो शॉर्टकट है कौन सा? द फर्स्ट टर्म, एडिशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मिडल टर्म. होप आपको ये समझ में आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस गो ऑन स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन है. हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इसको हम मान सकते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है ये क्वेश्चन. तो क्या क्वेश्चन है ये? व्हाट इज द क्वेश्चन? द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 आइटम्स इज 6. 15 आइटम्स का स्टैंडर्ड डेविएशन 6 आता है. Each atom is decreased by 1. So हर आइटम का स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से डिक्रीज किया गया. देन द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी. अब सब लोग पूछेंगे सर स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्वेश्चन तो पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर यहाँ पे कोई नंबर दिया नहीं है, कुछ दिया नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग 1 से डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? यू शुड नोट दैट कि स्टैंडर्ड डेविएशन सबका अगर हर एक एटम 1 से कम होगा, तो कोई भी एटम अगर तो 1 से कम होगा तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सेम नंबर चेंज हो रहा है. और सेम नंबर चेंज होने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन से चेंज होता है क्या स्टैंडर्ड डेविएशन? नहीं. तो इसीलिए पहले जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वही रहेगा. सेम स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी देयर एंड द आंसर विल बी 6 हियर. दिस इज अ लॉजिकल क्वेश्चन. इसके पहले वाला एक क्वेश्चन था मीन के ऊपर डिपेंड करता था ये क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वाज ऑन मीन. सो अरिथमेटिक मीन. तो यहाँ पे उसको बताया कि पहले अरिथमेटिक मीन ऑफ n टर्म्स इज व्हाट? x. x बार. तो अगर पहला टर्म को 1 से बढ़ाएंगे, दूसरा टर्म को 2 से बढ़ाएंगे, तीसरे टर्म को 3 से बढ़ाएंगे, तो ये मीन क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्टली मीन का. x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x सो ऑन अप टू xn अपॉन n. बाद में वो टर्म्स 1 से बढ़ा दिए उसको, देन x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन xn प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 upon so on up to n divided by n. So addition of this, separate it out now. You got this as x bar and 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n. Addition of first n terms. ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि addition of first n terms is nothing but n into n plus 1 upon 2. तो इसीलिए यहाँ पे आता है x bar plus n into n plus 1 upon 2 times n. So now this is equal to x bar plus n plus 1 upon 2. Now which is the correct option here? Correct option is option C. Option C is the correct answer here. तो 32 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी. और ये वाला एकदम इजी क्वेश्चन, सबको बहुत अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन.
और सब लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, तो z का वैल्यू क्या दिया है इन्होंने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, z इज इक्वल टू 15x + 20। मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, और एक इसका फंक्शन दिया है सब्जेक्ट टू 3x + 4y इज इक्वल टू 20। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं एकदम सिंपली आपको बता रहा हूँ कि पहले आप एक काम करो, y का वैल्यू 0 रखो। ये जो फंक्शन है इसके अंदर सब्जेक्ट टू फंक्शन है, आपको y का वैल्यू 0 रखना है। जैसे ही y का वैल्यू 0 रखोगे आपको मिलेगा 3x इज इक्वल टू 20, और 3x इज इक्वल टू 20 मिलता है तो x इज इक्वल टू 20/3, ये एक वैल्यू मिल गया आपको। 20/3 कॉमा 0, y इज 0। सेकेंड, x को 0 कर दो, अब x को 0 करके 4y इज इक्वल टू 20, so y इज इक्वल टू 20/4। so x, y इज इक्वल टू 0,5। एंड यहाँ पे देख के रखा है पहले से, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी x भी 0 है, y भी 0 है, दोनों को भी 0 ले लो आप, 0,0 इज द फंक्शन। तो आपको यहाँ पे फंक्शन मिलेगा। तो आपको 3 पॉइंट्स मिल गए। आपको 3 पॉइंट्स को जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है इसके अंदर। आपने पुट किया, पहले आप ये तीनों पॉइंट में से देख सकते हो कि 20/3, व्हाट इज 20/3? वैल्यू 20/3 का मीनिंग आएगा ऑलमोस्ट 6 पॉइंट समथिंग, या फिर 7 के नजदीक आएगा वो। सो 15 into 7, दिस वैल्यू विल बी एक्चुअली 15 into 20/3, 3 5s are 15, 5 into 20, 5 20s are 100. You got here 100. And next is 0 plus. Now you should write here 20 into how much? It should be 20 into 5. So 25 is again 100. So what is the correct answer? Correct answer is option B. What is option B? Option B is 100. So I hope you got your correct answer as option B. Option B is 100. Now let us go to differential equation. बहुत important है differential equations. 2 questions आएंगे differential equation से। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर इसका शॉर्टकट क्या है। ये सब मैंने ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट्स आपको शेयर किए यहाँ पे। अगर आप ये सेशन फिर से एक बार देखोगे यूट्यूब के ऊपर भी तो आपको पता चलेगा कि शॉर्टकट्स क्या है। ऐसे शॉर्टकट्स जो आप बोलोगे कि कोई तुरंत मैजिक होगा, तो ऐसा कोई मैजिक, देयर इज नो मैजिक एक्चुअली। लेकिन आप ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना। यहाँ पे तुरंत तो नहीं फाइंड आउट हो सकता, तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। जैसे ही आप स्क्वायर लेते हो दोनों साइड में, तो ये जो यहाँ पे 3/√3/2 है, तो ये निकल जाएगा अपॉन 2। तो अपॉन 2 निकलने के बाद ये होगा रो स्क्वायर d² y/dx², ब्रैकेट का स्क्वायर होगा ये। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर इज 2 and degree is 2. So option C is right. Integrating factor 100% लिखा के ले लो, क्वेश्चन आता ही आता है इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग बता सकते हो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जामिनेशन में। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जहां से मैंने आज बताया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहाँ पे वैरायटी होती है वहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चूज किए मैंने। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 - x² dy/dx इज इक्वल टू sin x + xy। कुछ लोग बोलेंगे सर अभी ये इसको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसका मतलब डायरेक्टली आपको क्या करना चाहिए, इसको एक साइड में लेना चाहिए। सो यू गेट 1 - x² dy/dx इज इक्वल टू sin x + xy। दिस विल बी 1 - x² dy/dx, ये xy को लेफ्ट साइड में ले लो, -xy इज इक्वल टू sin x। So your answer will be dy/dx minus x upon 1 - x² into y is equal to sin x. तो आपको पता है dy/dx plus p of x y is equal to q of x। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e⁻∫ p of x dx plus c। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये 2 स्टेप्स आपके होने ही होने चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज विथ यू, dy/dx plus p of x y is equal to q of x। So integrating factor is equal to e⁻∫ p of x dx plus c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e⁻∫ -x upon 1 - x², माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन dx। तो आपका आंसर आता है हाफ log of 1 - x² प्लस c। तो ये हाफ ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर होगा log of 1 - x² रेज टू हाफ। तो e⁻log ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा रूट ऑफ
मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ, तो आपका आंसर होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. So your integrating factor is root of 1 minus x square plus c. So your correct option is option A. Example 35. Now example probability. ये बहुत 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 इजी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. मैंने आज जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए ये आपके हाथ के मार्क्स है, आपको जाने नहीं चाहिए ये मार्क्स. बिल्कुल भी आपके मार्क्स बिल्कुल जाने नहीं चाहिए. तो यहाँ पे दिया है कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स. नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे कॉइन टॉस किया है कितने मिनट्स के लिए, कितने टाइम्स के लिए, 3 टाइम्स के लिए टॉस किया, लेकिन ये एक स्टेप आगे आपको लेके जाएगा ये क्वेश्चन. 4 बार टॉस किया कॉइन को, तो 4 बार टॉस किया है तो इसका जो भी सैंपल स्पेस है वो आपको पता होना चाहिए. सैंपल स्पेस आता है इसका हेड 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 है 2 raised to 4. व्हाट इज 2 raised to 4? 2 raised to 4 इज 16. 2 raised to 4 16. इतने आउटकम्स आएंगे उसके. जब भी कोई भी कॉइन या कुछ टॉस होता है तो उसके आउटकम बेस्ड होते हैं 2 raised to दैट मेनी टाइम्स. सो 2 raised to 3 8 होगा, 2 raised to 4 16 होगा, यहाँ पे 16 आएंगे आउटकम. अब ये 16 आउटकम्स में से यहाँ पे बताएगा एट मोस्ट 1, सिर्फ 1, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 1. तो इसका मतलब 1 से कम होगा वो भी लेना है हमें, 1 से ज्यादा होगा वो भी लेना है हमें, 1 से ज्यादा होगा वो नहीं लेना है हमें, 1 लेना है, ज्यादा से ज्यादा 1 ले सकते हैं हम. सो 1 2 3 4 and 5. So number of elements in A is equal to 5. So your answer comes out to probability of A is equal to number of possible outcomes upon total number of outcomes, that is 5 upon 16. So you got it as 5 upon 16. I hope you have understood this. Any doubt, any questions about this? So your correct answer is 5 upon 16. Next, ये तो बहुत अब आ गए हम लोग किसी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. यार इंटीग्रेशन आ गया अभी, अब क्या करना है इंटीग्रेशन के बारे में. तो ओके, सो सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन के अंदर डरना नहीं चाहिए. ये 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने वाले इसके ऊपर. तो 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे इसके ऊपर? तो एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और दूसरा आएगा वो जो लॉग वाले फॉर्मूले थे उसके अंदर से क्वेश्चन आ सकता है. तीसरा आ सकता है एक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले टाइप से, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो वो आता है tan इनवर्स ऑफ एक्स वाला जो फॉर्मूला है उसके ऊपर आएगा. सो फर्स्ट लेते हैं हम लोग e raised to 2x minus 1 अपॉन e raised to 2x plus 1 dx is equal to e raised to x plus e raised to minus x upon e raised to x minus e raised to minus x plus c. इसके ऑप्शंस देख लो, थोड़े अच्छे ऑप्शंस सेम ही दिखाई दे रहे, सब ऑप्शन सेम दिखाई दे. तो अब क्या करना है इसके अंदर? सबसे पहले आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये e raised to 2x जो है वो गड़बड़ करता है. तो e raised to 2x को आप सिंप्लीफाई करो. e raised to 2x is nothing but e raised to x into e raised to x minus 1 to x. यहाँ पे प्लस होना चाहिए, इट शुड बी प्लस 1 dx. अब यहाँ से e raised to x को कॉमन निकालो. e raised to x को कॉमन निकालने के बाद आपका आएगा e raised to x minus 1 upon e raised to x and e raised to x plus 1 upon e raised to x dx is equal to integration of e raised to x minus e raised to x and e raised to x plus e raised to minus x dx. क्योंकि ये e raised to x कैंसिल हो गया, यहाँ से डिनोमिनेटर से e raised to x जो है वो ऊपर आएगा, e raised to minus x होगा उसका. अब आपको पुट करना है e raised to x plus e raised to minus x is equal to t. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन वाला एग्जांपल लिया है यहाँ पे. क्यों लिया है? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वाले एग्जांपल्स आ सकते हैं आपको एग्जामिनेशन. फिर दिस इज इक्वल टू e raised to x plus e raised to minus x is equal to t. यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लो. डेरिवेटिव लेने के बाद आपका आंसर आएगा e raised to x minus e raised to minus x into dx. अब dx नीचे आएगा तो e raised to dt upon dx. This implies this dx is equal to e raised to dt upon e raised to x minus e raised to minus x. ये जो है e raised to minus e raised to x and minus x ये कैंसिल हो जाता है. आपका बचता बस ये है इंटीग्रेशन dt upon t which is equal to log of t. अब t का वैल्यू कितना है? t is nothing but t is equal to e raised to x plus e raised to minus x. तो कौन सा आंसर राइट है? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Next, let us go to question number 38. What's the time? Yeah, okay, it's 12:31. So let us take more 5 minutes because
The meeting started at 11:05. So let us take 5 minutes more. So integration of mod x dx, ये वाला mod वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो डेरिवेटिव में तो प्रॉब्लम करती ही करती, तो इंटीग्रेशन में भी करेंगे. तो mod of x dx is equal to 1/2 x square plus c minus x square upon 2 plus c and x mod x plus c. तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है. यहाँ पे आपको 1 लेना है, इंटीग्रेशन मॉड ऑफ x इंटू 1. तो यहाँ पे आपको लेना है इंटीग्रेशन ऑफ यूवी, इंटीग्रेशन ऑफ यूवी. सो यहाँ पे लिएट यूज कर सकते हैं आप लोग. सो यहाँ पे फर्स्ट लेना है आपको मॉड, जिसका आप लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हो. इसका 1 का आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो. 1 का इंटीग्रेशन आता है x. मॉड x का डेरिवेटिव ले सकते हो आप. So you can take derivative here. Mod x, derivative of mod x will be x minus integration mod x upon x into x dx. तो ये x x क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल होगा. आपका आंसर आएगा x into mod x minus integration mod x dx. अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ mod x dx है वो क्या है, i है आपका, पहले से इंटीग्रेशन है i. तो आपको ये होगा यहाँ पे x mod x minus I implies 2i is equal to x mod x implies I is equal to x mod x upon 2 plus c. So ऐसे टाइप वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेडनेस क्रिएट करते हैं, तो जबकि वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एक्चुअली. देन द क्वेश्चन इज integration of x sec square x dx upon root of tan square x plus 4 dx is equal to. तो ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे, इसके अंदर ऑप्शंस देखो आप लोग. ऑप्शन देखने के बाद आपको पता चलेगा सब ऑप्शन एक जैसे हैं. तो करेक्ट आंसर कैसे चूज करना है आपको, तो ध्यान से देखना. सेक स्क्वायर एक्स दिया है आपको एंड डिनोमिनेटर में दिया है tan स्क्वायर एक्स प्लस 4. तो रूट है वहाँ पे, तो आप सब्स्टिट्यूशन कर दो, क्योंकि tan का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो वो सेक स्क्वायर आएगा. तो इसीलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग. सब्स्टिट्यूशन tan x इज इक्वल टू t. तो tan x इज इक्वल टू t इम्प्लाइज tan स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt. अब dx का वैल्यू आएगा dt अपॉन सेक स्क्वायर x. तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x अपॉन रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 4 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x अपॉन रूट ऑफ tan स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 4 इंटू dt अपॉन सेक स्क्वायर x. ये सेक स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा dt अपॉन रूट ऑफ tan t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. So your answer is log of mod of t plus under root t square plus 4 plus c. Now using this, ये फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे हमने. इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो कि मैंने बताया था ऐसे वाले फॉर्मूले आ सकते हैं. एंड दिस इज इक्वल टू log mod tan x प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c. होप दैट I have answered your maximum questions जो कि आपको आ सकते. Now the time is nearly 12:35, so we will stop here now. Maximum questions I have tried to cover, maximum topics I have tried to cover here, and maximum important topics I have tried to cover. So thank you everyone. Once again, I thanks all the members of AISSMS team. I thank you Nigde sir, Amol More sir, then Dhananjay Pise sir, Dr. Mushrif sir and Dr. Mane sir for their initiative. If you have any questions, you can ask. किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं. तो you can ask your doubts and your questions. I hope no one is asking any doubts. Sir, any questions? is there any shortcut for integration? Oh, sir, shortcut for integration. Particularly, I want to tell you here that if you are using here e raised to 2x in this question, so while using here e raised to 2x, that you should know that there is no formula to find out integration of e raised to 2x directly. So you can split it out and then you can find the integration here.
For example, one more question I would like to add here is integration by part. So most of the times the questions asked will be on this integration by part. Now shortcut for integration, there is no such particular shortcut कि एक शॉर्टकट मैंने बताया वो सब क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल होगा. सब क्वेश्चंस के लिए तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा वो एक ही शॉर्टकट, लेकिन हर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है अलग अलग क्वेश्चंस के ऊपर कि क्या आप लॉजिक यूज करते हो. यहाँ पे जो लॉजिक बताया गया है वो सबसे सिंपल लॉजिक है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप यूज करोगे यहाँ पे, या फिर आपको दो तरीके से इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा. यही इंटीग्रेशन दो टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा और बाद में आप आंसर की तरफ अप्रोच होगे. एक होगा व्हेन x इज पॉजिटिव एंड व्हेन x इज नेगेटिव. जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड आएगा उसका पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, मतलब दो इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे. लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर रहे हो यहाँ पे तो इसीलिए सिर्फ एक ही यूज करना है आपको. एंड और एक चीज है यहाँ पे जो कि फॉर्मूला यहाँ पे दिया है ना, इसके अंदर ऐसे चार फॉर्मूलाज है सर, जो कि चार फॉर्मूलाज अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी के ऊपर आते हैं. तो ये एग्जाम जो है आपको इसके लिए है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है आपको. आपको ये नहीं देखना है कि कितने क्वेश्चंस कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकता हूँ, ये तो देखना है आपको. लेकिन आपको सिर्फ नॉलेज गेन नहीं करना है, आपको उसको अप्लाई करना है. तो एग्जामिनेशन इज अबाउट अप्लाइंग योर नॉलेज, नॉट ओनली हैविंग नॉलेज. I hope I have answered your question, sir. Hello, can you hear me? Hello, sir. Yes, sir. Is there any question for participants? If you Yes. have questions, you can ask in the chat box, or you can directly ask to the sir by unmuting you. But okay, so the total number of participants here I can see is 19 participants. So exactly who is the participant? First four are away, and the rest of are the participants. Okay. So I request all the participants to ask the question if you have any doubts. So now I have given permission to some of the participants that they can unmute themselves and they can ask question if you have any doubts. You can unmute yourself and you can ask the question. Sir, I think no more questions. Okay, I hope the point, there are two important things here to highlight, sir. I think everything is clear either to the participants. Yes. Now, do you have any doubts? Students, do you have any doubts? No. Okay. So was the session useful? Today's session was useful. Yes, sir. Okay. So best luck everyone for your examination. I want you all to be organized at one place for a WhatsApp group formed by this team, so that whatever notifications come further about the examinations and about the admission procedure, Mahesh sir and their team will notify you as soon as possible on their WhatsApp. So please cooperate with them and give your details. They will send you the material. Thank you everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, sir. All the participants are requested that in the quiz chat box, we have posted the quiz link for the day progress on mathematics, and also the feedback link for today's session. You are requested to fill the same, the feedback link and the quiz link. So you can start filling the same. Before ending the program,
I would like to request, I would like to thank our speaker, Professor Asim Patan sir, on behalf of All India Sri Shivaji Memorial Society, Institute of Information Technology, Pune, for giving such a wonderful session. Kids to uh, attempt the examination MSc CET 2000 for your valuable guidance, sir. We are really thankful to you. I also thankful to our management, Honorable Maluji Raje Chhatrapati, for the constant support. I also thankful to all other management committee members of this organization for their support. I really thankful to our Honorable Principal, Dr. P.B. Mane sir, for his valuable guidance. I also thankful to our HOD, Dr. P.G. Mushrif sir, for providing us this platform. I am thankful to all the organizing team members of this MSc CET 2020 crash course. Thank you, participant, for attending this session, and thank you, one and all. Stay home, stay safe. Thank you, one and all. Thank you, sir. We'll wait for the 5 minutes. Let them, those who are attempting the quiz link and the feedback link. अरे अर्जुन, अरे पडशील बापू. Bhune sir is asking some question. Bhune sir, युट्यूबला पण ते काल एक दोन मुलं होते वाटते, काही एक दोघा जणांची क्विज नव्हती भेटली, तर युट्यूबला पण टाकावं लागेल ते. feedback YouTube मध्ये टाकले आपण. टाकलंय सर. हा. हा, कालचं कसं एक दोन मुलांनी विचारलं, कालची ती फिजिक्सची लिंक, तर त्यांनी पर्सनली मला कॉन्टॅक्ट केला होता. हो, ते आपण ग्रुपवर पण टाकतो म्हणावं. बरं, त्यांना सीईटीचा ग्रुप जॉईन करायला लावा आणि त्याच्यावर पण ग्रुप नाही व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकलं म्हणजे सगळ्यांनाच मिळते ती. व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकलं. चलो, ओके, बाय. Okay. हा सर. मी चॅट मध्ये पोस्ट केलेलं का जात नाही हो? मी होस्ट नसल्यामुळे का? ते आयर सरांना विचारते. मी आता एक हे केलं, कॉमेंट्स टाकली तर ती गेली नाही राव चॅट बॉक्स मध्ये, प्रायव्हेटली येते ती. ते तू एव्हरीवन करा ना. चॅट विथ एव्हरीवन करा म्हणजे सगळ्यांना. एव्हरीवन केलं हो. त्याच्यात 3च ऑप्शन आहेत, फक्त होस्टचेच ऑप्शन दिसायला, एव्हरीवनचं ऑप्शन दिसतंय ना. टाका सर, आता टाका सर. हॅलो, नाईस. आता नाईस सेशन म्हणून टाकतो. हॅलो, Yes, please. आता आली का बघा बरं नाईस सेशनची. Who is there? हॅलो. हा, if you have any doubt, you can ask. येणं मामा. ऐकायला जाते की सगळं ऐकायला जाते त्यांना. बरं सर, काय विचारायचे? काही नाही, काही विचारलं नाही, ते सेशनची लिंक म्हणलं. हा 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 हा. आता व्हेरी इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन. हा, लिंक ह्याच्यावर टाक. हा, व्हॉट्सअपवर टाकली म्हणजे सगळ्यांना मिळते हो, बाकी काही नाही. हो, व्हॉट्सअपला टाकायची. हो, ठीक आहे. मग चालते. बाकी काय म्हणता?
बाकी आता 0 होत आली. आता उद्यापासून आमचं आहे वाटतं. हा आता उद्या असं तुम्ही हा. उद्या तिघ आमचं तिघ आमचा अँड्रॉइड मोबाईल आहे, जरा कमी जास्त होऊ शकते तसं मी बाहेर पार्किंगला बसतो. चालेल आम्ही आहे ना, आम्ही आहे. सर आपण सो बी फोनवर टच बोलू विथ सर. मी. हा फोनवर काय असेल तर मी आहे, सांगा प्रॉब्लेम आला. नाही आहे, कव्हरेज आहे. थोडं ब्रेकिंग होतं कधी कधी माझा वॉइस. चालतंय. फोन करायचं. ओके. Yes. फीडबॅक नाही, फीडबॅकला काहीच होत नाही. काय नाही मग आता त्याच्यात काय.